Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue your Delhi 2020 board paper. My dear student, with this paper we will try to understand your revision test 8 and revision test 9 syllabus also. This is very interesting matter with us that if we are going to discuss about the national movement, we are going to read about the Mahatma Gandhi. My dear student, आज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 100 इयर्स लगभग पूरे होने वाले हैं. 1922, 21 टू. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आज जो उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कुछ इंस्टीट्यूशंस खुले, कुछ स्कूल्स खुले, जहां पे महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको क्या करना है, आपको स्वशिक्षा पे ध्यान देना है, स्वरोजगार पे ध्यान देना है, आपको उन चीजों पे ध्यान देना है जो सबसे जरूरी हो, जॉब क्रिएट करना है. आपको टाइटल्स जो ब्रिटिशर्स के द्वारा मिली उसको आप छोड़ देंगे. आई मीन टू से दैट कि किस हर तरह से आप ब्रिटिशर्स को नॉन कॉपरेट करेंगे. आज उसके 100 साल पूरे हो गए. एंड दैट इज क्वेश्चन व्हाट आई डिस्कस. आई होप यू हैव रिमेंबर इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस क्लासेस वीडियो वेयर आई डिस्कस द क्वेश्चन वाज दैट द फॉर द स्वराज, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर द स्वराज Hindu, Muslim and Parsi and Sikh will have to unite. Explain this statement. Hindu, Muslim, Sikh, Parsi have to unite for किसके लिए? स्वराज. कहता explain this statement and explain this statement of Mahatma Gandhi ji in the context of the non-cooperation movement. Why Mahatma Gandhi given this statement that Hindu, Muslim, Sikh and Parsi they have to unite, they will have to unite. क्यों एक साथ unite होना होगा? And I hope you have remember what I taught you in my previous classes, that this Rowlatt Satyagraha, Rowlatt Act that was passed by the British government, and the Rowlatt Act which was passed by British government where clearly mentioned that where in the Rowlatt Act the Britishers they tried what कि हम एक ऐसा कानून पास करेंगे. ये वही समय था, ये वही डिकेड्स था जब तेजी से रेडिकल मूवमेंट भारत में तेजी से चल रहे थे. 1910 टू 1920 का डिकेड्स ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करना चाहते थे. उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया. सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, इस कमेटी ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया. व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? कहता है ऑन द रिपोर्ट ऑफ सेग्रीगेशन कमेटी हेडेड बाय द जस्टिस रॉलेट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू बिल इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव इन फरवरी 1919. द गवर्नमेंट, आई मीन टू से दैट ब्रिटिशर्स दे व्हाट आई मीन टू से दैट कि एक गवर्नमेंट ने बिल लाया और बिल लाने के बाद और सिडनी रोड की अध्यक्षता में कमेटी बनी. बढ़ती हुई घटनाओं को देख के माय डियर स्टूडेंट, दीज ऑल पॉइंट्स आई हैव डिस्कस इन योर प्रीवियस क्लास. अगेन आई एम रिमाइंड यू दैट द स्टेप बाय स्टेप दिस क्वेश्चंस. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली एक्सप्लेन, you can easily frame your answer. First you have to write about that Rowlatt Act. Thereafter Rowlatt Satyagraha that was launched by Mr. Gandhi. Date was 6 April 1990. But before explain the other portion of this chapter like Khilafat, like Jallianwala Bagh Massacre, I would like to explain about the Rowlatt Act. When you will easily understand the Rowlatt Act, you can understand about that non-cooperation. पूरा आप समझ जाएंगे. My dear student, listen carefully what I am saying. That is Justice Rowlatt. He was appointed for that work.
The government introduced two bills in the central legislature in February 1919. This bill gave vast power the police to search. पुलिस टू सर्च क्या करने के लिए? कहता है कि पुलिस को खूब सारे अधिकार दे दिए गए. सर्च अ प्लेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट अ वारंट एंड होल्ड द ट्रायल विदाउट ज्यूरी. So that's why this bill was condemned by every Indian leader. They called Rowlatt Act as a black bill. Even if this bill was passed, ये बिल पास कर दिया गया. गांधी जी decided that we have to launch a movement against that. That movement was Rowlatt Satyagraha. Gandhi ji started the Rowlatt Satyagraha. Date was 6 April 1919. What I told you. स्टार्ट किया गया रॉलेट सत्याग्रह 1919 का. और यहां से आपको एक पूरा का पूरा चेंजेस दिखाई देंगे, बदलाव दिखेगा. ये बदलाव क्या था? रॉलेट सत्याग्रह के बाद 6 अप्रैल को डेट ड्यू थी. 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 का दिन बैसाखी का दिन था. सभी एक जगह असेंबल हुए थे त्योहार मनाने के लिए. वहां पे कुछ लोगों ने स्पीच दिया. जनरल डायर ने सब पे फायर कर दिया. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ओनली 379 पीपल वर डाइड एंड 1200 पीपल दे वर वुंडेड. बट द एक्चुअल नंबर ऑफ वेरी वास्ट. द हंटर कमिटी गिवन देयर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट दीज नंबर्स what they mentioned, Britishers. But the Tahqiqat committee, which was settled by the nationalist leader, the president of Tahqiqat committee, Madan Malvi, and other members of this committee, Motilal Nehru, Mahatma Gandhi, Pupul Jaikar, Tej Bahadur Chopra, and such type of others, they clearly defined that not the number is very less. The 1,000, above 1,000 people, they put it in Jallianwala Bagh Massacre. And then after, Gandhi decided that what? गांधी जी डिसाइडेड दैट अब क्या करना है? हमें एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना है. दैट मूवमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया. गांधी जी फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट. गांधी जी डिसाइडेड नीड टू लॉन्च द मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट. दिस ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इज कॉल्ड Jallianwala Bagh, non-cooperation movement. This broad movement was result of the Jallianwala Bagh massacre. The sudden result, जो sudden actions was उसका रिजल्ट लिया गया. एक सेशन बुलाई गई कलकत्ता सेशन, स्पेशल सेशन कांग्रेस की बुलाई गई कलकत्ता सेशन. डिसाइड किया गया गांधी जी आप नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करिए, सभी सपोर्ट करेंगे और गांधी जी ने नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. यहीं पे कुछ चीजें थी इसको गांधी जी ने कहा. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कई सारी बातें की, लोगों से अपील की ये आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मूवमेंट कैसे करेंगे तो हम सफल होंगे. इन चीजों के बारे में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कुछ बातें कही. वो सारी चीजें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या थी, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको वो सब चीजें क्लियर दिखने लगेगी. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसी समय 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया और जो होम रूल की डिमांड थी कि हमें भी स्वशासन दिया जाए, शासन में पार्टिसिपेशन दिया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत लॉलीपॉप के रूप में स्वशासन में भारतीयों को हिस्सा दे दिया. बहुत सारे इंडियन लीडर इस बात से सेटिस्फाइड थे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ हैं. बहुत सारे लाइक एनी बेसेंट, like Surendra Banerjee, like a lot of leaders during that time, Madan Malvi, Deshbandhu Chittaranjan Das, Vipin Chandra Pal, Muhammad Ali Jinnah, Shankar Nair, Sir Narayan Chitravkar, इन सभी लोगों ने क्या कहा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गांधी जी के जो स्टेप लेने जा रहे थे उसका विरोध किया. एनी बेसेंट ने तो यहां तक कहा कि गांधी जी राजनीति में बच्चा है. गांधी जी ने कहा अब हमें स्वशासन नहीं चाहिए, वी वांट
वी डू नॉट वॉन्ट द स्वशासन, वी वॉन्ट स्वराज्य, इंडिपेंडेंट। हमें स्वशासन नहीं, अब हमें स्वराज्य चाहिए। एंड गांधी जी promises their own people that if you follow my instructions, if you follow what I am saying, what I am urge you, then during 1 year we will be free from Britishers. हम स्वतंत्र हो जाएंगे। गांधी जी ने एक लेटर लिखा, गांधी ने एक लंबा सा स्पीच बनाया। गांधी जी ने कहा सितंबर 1920 असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस सेशन आयोजित की गई। इस कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया और यहां पे असहयोग का प्रस्ताव पेश करते हुए गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूल पर कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज्य के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, नवीन लेजिस्लेचर्स हमारे डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। अब समय आ गया है। इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। एनी बेसेंट सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि यह मूर्खतापूर्ण विरोध समाज तथा सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीति में बच्चा कहा। बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर, जैसा कि मैंने नाम बताया आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, देशबंधु चित्तरंजन दास, श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, सब ने कांग्रेस छोड़ दी और अब कांग्रेस का पूरा नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ चुका था। गांधी जी ने लोगों से अर्ज किया, गांधी जी ने लोगों से रिक्वेस्ट की इस आंदोलन की शुरुआत के लिए। उन्होंने कहा सरकारी जो उपाधियां हैं, गवर्नमेंट टाइटल्स हैं और अवैतनिक सरकारी जो पद है उनको छोड़ दिए। सरकार द्वारा आयोजित सरकारी या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट करें। स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दे दें। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों, जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनको बाइकआउट करें और उसकी जगह आप क्या करें, अपने स्कूल्स पर वकील न्यायालय छोड़ दें और साथ ही साथ आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायत के माध्यम से करें। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम सेइंग दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू थिंक अबाउट दैट, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द डिमांड ऑफ गांधी, व्हाई गांधी asked for such type of demand for their own people, because Gandhi wanted that कि we have to pressure, we have to give pressure, हम दे सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, हम इस आधार पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम ये सारे स्टेप ले सकते हैं और उसी समय खिलाफत मूवमेंट आया। खिलाफत मूवमेंट 1919-1920। व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट? व्हाट आई टोल्ड यू, खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने आपसे बताया था कि खिलाफत मूवमेंट में भारत के 2 प्रमुख लीडर थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, साथ साथ हजरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, तमाम सारे लीडर्स थे उसके साथ, एम ए अंसारी, कई सारे लीडर्स इसके पार्ट थे, लेकिन 2 प्रोमिनेंट, शौकत अली, मोहम्मद अली और हजरत मोहानी। हजरत मोहानी वाज द फर्स्ट लीडर who suggested Gandhi ji that we have to accept the boycott policy in this movement, the non-cooperation movement, and Gandhi ji accepted it. हजरत मोहानी के कहने पे गांधी जी ने स्वशिक्षा, स्वशासन, स्वराज्य और बाइकाट की बातों को स्वीकार कर लिया, मान लिया और ये मेन वीपन्स बने नॉन कॉपरेशन के। आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैलने लगा, मूवमेंट दूर दराज के गांव तक तेजी से फैलने लगा। लोगों को पता नहीं है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करना है।
लोगों ने इसके इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके से किए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कई सारे प्रोग्राम चलाए गए। इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एम्ड द थ्री ऑब्जेक्टिव, नेमली द restoring the old status of Sultan of Turkey, B, the punishing those guilty of the atrocities in Punjab, and C, attending Swaraj for India. Gandhi ji promised Swaraj in a year. Gandhi ji promised Swaraj in a year. एक साल के अंदर हम स्वराज्य दे देंगे. If his program was fully practiced and implemented by the people. Gandhi ji promised that Swaraj in a year if the people, if the public what follow the instructions which is given by Mr. Gandhi. Gandhi ji toured the whole country to enthuse the people with this program of the non-cooperation and to explain its different aspect. He set the bell rolling by returning this own medal to the Governor General. अब यहां से गांधी जी ने पूरे भारत का टूर करके अपने लोगों को क्या किया, पूरी तरीके से उद्वेलित करने का काम, आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का काम। लोग बड़ी संख्या में, गांधी जी जहां जहां जाते थे बड़ी संख्या में लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ते चले जाते थे और इससे मूवमेंट तेजी से बढ़ता जा रहा था, मूवमेंट का आकार बढ़ रहा था। दिसंबर 1920 नागपुर के आयोजित कांग्रेस की सेशन में असहयोग प्रस्ताव से लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, इन लोगों ने अपना विरोध वापस ले लिया। स्वराज्य नया लक्ष्य घोषित किया गया और आंदोलन धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आंदोलन शुरू करने से पहले ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिए गए अपने टाइटल्स कैसरे हिंद को वापस कर दिया। कैसरे हिंद जो उनकी उपाधि थी उसको गांधी जी ने वापस कर दी। बहुत से अन्य लोगों ने गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवी तथा उपाधियों से त्याग दे दिया। जनरल बजाज ने अपनी उपाधि राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बहुत से वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें से बंगाल के देश बंधु चित्तरंजन दास, इनमें से उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से बिहार के डॉक्टर राजेंद्र बाबू, इनमें से मद्रास के सी राजगोपालाचारी, दिल्ली की अरुणा आसफ अली, तमाम सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी और फिर तेजी से यह आंदोलन, विद्यार्थियों के जो सेंटर थे, अध्ययन केंद्र थे, उनके लिए तमाम सारी शिक्षा संस्थाएं खोली गई। बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से आज भी ये यूनिवर्सिटी अभी बनारस में है, अपनी शताब्दी वर्ष मना रही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। आंदोलन में कई मुस्लिम नेताओं ने उनका साथ दिया, जिसमें अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, एम ए अंसारी महत्वपूर्ण थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और 6 महीने के अंदर ही अंदर तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। 1 करोड़ रुपीस। हाउ स्ट्रेंज। 1919 के सुधारों, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, उस सुधारों के उद्घाटन के लिए जब ड्यूक ऑफ कॉमन्स भारत आने पर, जब वो भारत आए तो भारत में उनका कंप्लीट बाइकआउट किया गया, बहिष्कार किया गया। 4 मार्च 1921, 4 मार्च 1921 ननकाना में गुरुद्वारे के कारण करीब 70 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। सैनिकों के द्वारा गोली चला दी गई थी शांतिपुर मार्च के ऊपर, 70 लोग मारे गए। 1921 लॉर्ड रेडिंग भारत का वायसराय बनाए गए। उन्होंने कहा कि उनसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया गया, यू हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ people. Why? Because they boycotted the Duke of Commons, जो आए थे उनका लोगों ने विरोध किया था। राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, चित्तरंजन, सब सारे प्रमुख नेता, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे।
ये वही मोहम्मद अली है, शौकत अली मोहम्मद अली, खिलाफत के प्रमुख नेता। 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका स्वागत काले झंडे दिखाकर किया गया और फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और करीब करीब 60,000 लोग इस आंदोलन में अरेस्ट किए गए। और ये मूवमेंट 1 फरवरी को जब गोरखपुर में किसानों के द्वारा शांति मार्च निकाला जा रहा था, उस समय पुलिस ने इन किसानों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। इस ओपन फायरिंग से इस ओपन फायरिंग से किसान बड़े नाराज हुए और उन्होंने थाने को घेर करके 21 सिपाही के साथ एक दरोगा 22 लोगों को जला दिया। गांधी जी इससे बड़े दुखी हुए। 4 मार्च 1922, 5 मार्च 1922, विपिन चंद्रा आधुनिक भारत अपनी बुक में 5 मार्च 1922 का डेट देते हैं। सुमित सरकार आधुनिक भारत अपने बुक में 4 फरवरी 1922 का डेट देते हैं। एनसीईआरटी कहीं 5 फरवरी का डेट है और कहीं पुरानी एनसीईआरटी में 4 फरवरी का भी डेट है। तो 4 से 5 फरवरी ये 2 डेट में एक जघन्यतम अपराध किया गया पुलिस के द्वारा और जिसका रिएक्शन के फलस्वरूप किसानों ने थाने को जला दिया चौरी चौरा में। गोरखपुर का एक छोटा सा कस्बा है चौरी चौरा, और इसके रिजल्ट के फलस्वरूप गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की घोषणा कर दी। 12 फरवरी बारदौली की कांग्रेस कार्य समिति गांधी जी ने बैठक बुलाई बारदौली में और चौरी चौरा कांड पर सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और फिर उन्होंने क्रिएटिव वर्क पे काम किया। 1 करोड़ कांग्रेस के मेंबर बनाए जाएंगे, अनटचेबिलिटी को दूर किया जाएगा, इस तरह के तमाम सारे काम करने का प्रयास उन्होंने किया। इस प्रकार गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देना भारतीय नेताओं की समझ से परे थी। गांधी जी की तीखी आलोचना की गई। लाला लाजपत राय ने, जो उसमें जेल में थे, उन्होंने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ऐसे समय जब देश की जनता का उत्साह चरम पे था, आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ऐसी ही कुछ आलोचना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने भी किया। मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी का एक गांव हिंसा का पालन न करे तो उसका दंड जम्मू कश्मीर के गांव को देना कहां तक उचित है। 3 स्टेटमेंट देखिए। लाला लाजपत राय ने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण पूरे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि किस तरीके से, सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट यही था कि जब पूरे देश का उत्साह चरम पे हो तो आंदोलन को वापस लेना किसी संकट से कम नहीं है। इन्होंने इस बात को अपने बुक इंडियन स्ट्रगल में लिखा। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी का एक गांव यदि हिंसा का पालन न करे, हिंसा के नियमों का पालन न करे, अहिंसा के नियमों का पालन न करे, उसका दंड जम्मू कश्मीर के गांव को देना कहां तक उचित है। व्हाटएवर, जो भी हो, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जो लोग जेल में हैं उन्हें अपनी प्रतिक्रियाओं को देने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी ने कहा, कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, प्रिजनर्स एज ए सिटीजन्स दे आर डाइड।
वो मरे हुए हैं। कैदी नागरिक दृष्टि से मृत हैं, इसलिए इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि जो लोग जेल में हैं उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं है, उनके इस प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। आंदोलन वापस और असहयोग वापस ले लिया गया। ये पूरी घटनाएं चली। फिर गांधी को अरेस्ट किया गया, ब्रूमफील्ड के अदालत में गांधी को लाए गए। ब्रूमफील्ड जज थे। गांधी जी जब कोर्ट में खड़े थे, ब्रूमफील्ड उनको सजा दे रहे थे, तो ब्रूमफील्ड ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में सजा सुनाई। ब्रूमफील्ड ने कहा, मिस्टर गांधी, आई नो यू वेरी वेल एंड व्हाट द रीड्स, व्हाट द पिटिशंस जो हमारे कोर्ट में आए, मैंने सबको सुना, उनमें आपका मुकदमा सबसे यूनिक है। आप अपने दुश्मनों के द्वारा भी सम्मानित किए जाते हैं, सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि आपने राजद्रोह किया है, कंप्लीट एम्पायर के अगेंस्ट काम किया है, इसलिए आपको सजा तो सुनानी पड़ेगी। और इसके लिए आपको 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई दे रही है। 6 ईयर कठोर कारावास, जेल में गांधी जी को भेजा जाता है। लेकिन ब्रूमफील्ड ये भी लिखते हैं कि यदि ब्रिटिश क्राउन आपकी सजा माफ करती है तो इस पृथ्वी पे सबसे अधिक खुश होने वाला व्यक्ति कौन होगा? मैं होऊंगा। दैट इज द रिवॉर्ड, दैट इज द, आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज वेरी यूनिक फॉर मिस्टर गांधी। ये बात कहना ही अपने में यूनिक था। ब्रूमफील्ड जो जज थे, ब्रिटिश जज थे, ये बात मानते थे कि गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने में यूनिक है, और वो ये कह रहे हैं कि एज ए जज मैं आपको सजा तो दे रहा हूं, लेकिन अगर ये सजा माफ होती है तो उस धरती पे सबसे अधिक खुश होने वाले व्यक्ति कौन होगा? मैं होऊंगा। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर मिस्टर गांधी। माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट। ये जो घटना थी, ये चीजें थी, ये गांधी को महान बनाता रही थी। तो इसलिए गांधी को सजा हुई, लेकिन गांधी की तबीयत खराब हुई। गांधी 2 साल के अंदर ही गांधी को जेल से छोड़ दिया गया। गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फिर गांधी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। एक लंबा अंतराल, 1922 टू 1929, 6 years near about, he was not participated in the active politics. He focused on the creative work. He focused on the untouchability. He focused on the women's empowerment. He focused on all the social evils that how can be thrown out in the society. My dear student, that is the part I am saying. It is the very important for the national movement. कि everything गांधी want to solve. सभी कुछ गांधी साथ लेना चाहते थे, and गांधी felt that whenever we will not empower the women, whenever we will not empower the untouchables, whenever they not participate in the mainstream of society, we would not be success in our aim. हरिजन सेवक संघ की स्थापना, फिर इस समय तमाम सारे काम, नॉन कॉपरेशन का बंद होना, यहां तक नॉन कॉपरेशन है। माय डियर स्टूडेंट, इन पूरे लेक्चर के आधार पर यदि आप नॉन कॉपरेशन को लिखेंगे तो आपको कई सारी चीजें आसानी से आप लिख सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यदि 1 मार्क में आए तब भी आप लिख लेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तब भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था 23, फॉर स्वराज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख will have to unite. Explain this statement of Gandhiji in this context of the state, in the context of non-cooperation movement. कि जो स्टेटमेंट था गांधी जी का नॉन कॉपरेशन स्टेटमेंट मूवमेंट के संबंध में कि सभी लोगों को एक साथ यूनाइट होना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण इस पर देखना है। तो मैंने जो बातें कही उन चीजों को समझिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट। और आप आसानी से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लिखना हो तो फैक्ट को साथ रखिए, तथ्यों को साथ रखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को साथ रखिए, क्रोनोलॉजी मस्ट होती है, डेट मस्ट होता है, उसको साथ रखिए। फिर आप अपने आंसर को एक प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप लिखते चले आइए। जैसे नॉन कॉपरेशन में मैंने कहा, व्हाट आई सजेस्ट यू अगेन एंड अगेन सजेस्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रॉलेट एक्ट, then after Rowlatt Satyagraha, then after
जलियांवाला बाग मस्केयर, देन आफ्टर खिलाफत मूवमेंट, देन आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिखने के बाद आप कहेंगे द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ सम लीडर्स, एंड लास्ट में चौरी चौरा कांड, गांधी जी को सजा। खत्म करेंगे आप यहीं पे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर फ्रेम हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी क्लास में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 24 क्वेश्चंस। आप तो गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।